recording started. Fine. We'll discuss Basavaraj Ballad college start kab hoga afterwards. First of all, we are going to start the class. Okay, my dear kids, numericals. Fine. So the first one, a constant. You take down these question. A constant retarding. क्या सर? Retarding क्या होता है? I will tell you, my dear kids. Retarding force. Retarding force of 50 Newton is applied. Is अरे यार कितने लोग एडमिट पट से आ जाना चाहिए तुम लोगों को. Is applied. जल्दी तो ज्वाइन करो यार. Is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? Okay, my dear kids, this is the question. Please note it down. Question को लिख लो. Samir Kulkarni, you have to just reconnect it. Reconnect it. Okay. So this is the numerical. Fine. This is the basically numerical. How much long question? This is small question, Krishna. Okay, it's audible. Fine. It's small question, man. It's not a big question. It's not a big deal. It's a very easy question. So let me tell you that how we are going to crack this question. Question को किसी भी crack कैसे करते हैं? Fine. Okay. My dear kids, listen up. तो पहले तो इसको पढ़ लेते हैं ढंग से. Fine. Just by reading that we are going to mark some things. तो इसमें क्या होता है? So first of all, before proceeding to read this question, we need to know that जैसा theory important होता है physics में, okay, as how theory is important for physics, numericals are also important. Okay, equally numericals are important because these create the ideal situations where you understand how the physics is applied. तो physics कैसे apply किया जाता है वहां पे हम study करते हैं. कहां पे? numericals पे. ठीक है? So it will create ideal conditions. So to understand the concepts, how to use that into the ideal situation or unideal situations, it is with reference of what? With reference of laws, equations. Fine. Expressions. Simple चीजें हैं. Fine. This is very much simple, my dear kids. So first of all, we are going to read that कि क्या है question. A constant retarding force of 50 Newton. कितने का? 50 न्यूटन. तो मतलब क्या कह रहे हैं? रिटार्डिंग फोर्स है. चलो रिटार्डिंग को छोड़ देते हैं. बट व्हाट इट इज एक्चुअली? इट इज फोर्स. ये तो हमें पता है. दिस वी नो दिस इज अ फोर्स. ठीक है. तो अभी देखो एक काम करते हैं.
रफली चीजें डालते हुए जाते हैं. रिटार्डिंग फोर्स इज 50 न्यूटन. चलो ले लिया हमने. We did this fine. Is applied to a body of mass 20 kg moving initially. तो कोई मास है और उसका जो मास कितना है, इट इज 20 kg. फाइन. सो इफ द बॉडी इज मूविंग, तो 20 kg मास वाला बॉडी जिसपे हम 20 kg मास है जिसपे हम क्या कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स. ठीक है, तो हम लोग फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं. तो इसका इंटरप्रिटेशन तो बाद में कर लेते हैं. विद अ स्पीड ऑफ कितना, v is equals to 15 मीटर पर सेकेंड. सर, velocity and speed, do both of the quantities are, yeah, I will tell Krishna, don't worry. अभी मैंने इसको क्रैक नहीं किया क्वेश्चन को. velocity and speed both will be having same symbol sir, v. yes my dear kids. तो speed और velocity का जो symbol होता है ना, वो दोनों का same होता है. now what they are trying to ask you, how long does the body take to stop. मतलब कोई मूविंग बॉडी है, वो मूव कर रहा है और वो कितना टाइम लेगा रुकने के लिए. how much time it is taking. how long मतलब क्या होता है, time. does the body take to stop, yeah. are we finding time sir, yes my dear kid. तो यहाँ पे देखो, once you see here my dear kids, कितने quantities हैं. here we have 4 quantities. कितने हैं बच्चों, we have 4 quantities. तो initially we will find difficult to understand these numericals, even though we know formula, even though we know proper theory which is pertaining to this question. तो ये क्वेश्चन को जो भी pertaining theory रहेगी ना, वो अगर आपको पता भी है, so you peoples will find difficult to solve this. okay, so let us understand first of all, इसका जो back basic है ना, इसको समझ के हम क्या करते हैं, bifurcation कर लेते हैं. how we are going to make bifurcation. so first of all we need to put a column. ठीक है, कॉलम डालना है. कैसे डालेंगे हम लोग, ऐसे 2 columns. okay, so when we are putting 2 columns we will come to know that कि यार क्या करना है इसमें, what we are going to do this, right, by putting 2 columns. now listen up my dear kids. so first of all we are going to write over the first column unknown quantity. u stands for what, unknown, जिसका हमें पता नहीं, unknown quantity. so physics is filled up with what my dear kids, physical quantities. physics is filled up with physical quantities and taking the measurement of those quantities is physics. मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों. physics is filled up with completely physical quantities. if you take class 11 syllabus or class 12 syllabus, तो class 11 हो या बच्चों class 12 syllabus हो, you are going to make what, throughout PUC you are going to find out what is physical quantity, physical quantity को कैसे find out करना है, known and unknown quantities you are going to see and you are going to study it thoroughly. कौन सा, physical quantities. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों सबको. सो अननोन क्वांटिटी यहाँ पे कौन सा है, टाइम फैक्टर, जिसको आप फाइंड करने वाले हो, विच इज नॉट गिवन इनटू द क्वेश्चन. एम आई राइट माय डियर किड्स. ओके, तो अननोन क्वांटिटी आप फर्स्ट कॉलम में लिखते हो. आई एम टेलिंग यू द ट्रिक हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स, या गर्ल्स एंड बॉयज, फाइन. सो अननोन क्वांटिटी यहाँ पे कौन सा है, टाइम फैक्टर है. चलो, तो एक बात करते हैं बच्चों, अभी नोन क्वांटिटीज, दूसरा वाला क्या रहेगा, नोन क्वांटिटीज जो हमको पता है, whichever we know that, so we are going to bifurcate that. ठीक है, नोन क्वांटिटीज कौन से हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं. सो रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है, दिस इज 50 न्यूटन. सो न्यूटन मींस बेसिकली इट इज इन एसआई यूनिट. फाइन, क्या है वो, इट इज इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट माय डियर किड्स. तो आपको जो भी एसआई यूनिट में है, you should not convert that. fine. so mass in terms of kg, kg क्या है, kg is the SI unit of mass. तो आपको कन्वर्जन करने की यहाँ पे भी जरूरत नहीं है, मतलब mass is equals to 20 kg आपने लिख दिया. now speed in terms of meter per second. this is also what, this is also in terms of SI unit. क्या ये बात क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों आपको, या. so speed is equals to 15 मीटर पर सेकेंड. चलो, हमने बाइफरगेट तो कर लिया.
एक जगह हमने सारी के सारे क्वांटिटीज लिख लिए, फिर उसको हमने बाइफर्केशन किया. We did the bifurcation. One column is pertaining to unknown quantity and another column is pertaining to known quantities. This is very much simple. Yeah. तो बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही इजी है एंड उसी बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट कि टी माने क्या है. टी स्टैंड्स फॉर टाइम. यू शुड एनालाइज दैट. टी क्या है? टाइम. सो व्हेनेवर यू सॉल्व द लास्ट वैल्यू इट शुड कम इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सेकंड्स. तो यस क्या है? इट इज द सिंबल ऑफ यूनिट सेकंड्स. तो ये आप जो सेकंड्स लिखते हो ना, उसका सिंबल क्या है? यस है. एंड यस इज नथिंग बट SI यूनिट ऑफ टाइम. ठीक है. एंड व्हाट इज RF? RF इज नथिंग बट रिटार्डिंग फोर्स. अभी सर रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है? सर रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है? बच्चों जो फोर्स आप अप्लाई करते हो, whenever you apply force, if the acceleration takes place, if the acceleration takes place, that force is called as simply force. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पुश फोर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? पुश फोर्स. अभी समझो कोई साइकिल आपका छोटा भाई चला रहा है एंड उसको पता नहीं कि उसको ब्रेक ब्रेक है नहीं, एंड यू आर सीइंग दैट कि वो आगे से आ रहा है एंड ही इज टेलिंग दैट भैया ब्रेक नहीं लग रहा है, ब्रेक इज नॉट गेटिंग. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? आप सामने से जाओगे, उसको पकड़ने की कोशिश करोगे और थोड़ा सा पीछे हटते हुए जाओगे. व्हाई? बिकॉज द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द साइकिल ओवर यू, वो आपको थोड़ा सा पीछे ढकेलेगा और आप ट्राई करोगे उसको रेजिस्ट करने की, एंड यू विल स्टॉप, you will stop the bicycle because the bicycle is in acceleration. तो वो उसका स्पीड बढ़ते हुए आगे बढ़ रहा है, तो आप धीरे 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 करके क्या करोगे? अपना फोर्स अप्लाई करके वापस साइकिल के फोर्स को आप रोकोगे. ठीक है, तो साइकिल का फोर्स क्या हो गया? इट हैज बीन डिक्रीज्ड. व्हेन द फोर्स डिक्रीजेस एंड इट विल गेट स्टॉप, इट मींस दैट फोर्स इज गेटिंग अप्लाइड इन द नेगेटिव वे. मतलब फोर्स का जो इंपैक्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है. So that negative force is called as retarding force. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? What is retarding force? What is retarding force? क्या ये बात क्लियरली समझ में आई? Boys and girls both? Yeah, very good, very nice. Okay, I will tell you once again. बोल रहे हैं बसवराज पल्लत. Fine, listen my dear kid. Imagine that your brother is coming from the front. Only when he will pedal the bicycle, तभी आप उस पे फोर्स लगा पाते हो. So speed increases and your brother will come to know that there is no brake can be applied because brake है ही नहीं साइकिल में. उसको बाद में पता चलता है. और आप सामने खड़े हो एंड वो चिल्ला रहा है भैया ब्रेक नहीं है, there is no brake. So acceleration increases. तब क्या करोगे? क्योंकि समझो कि इट्स अ स्लोप वाला रोड है, आप रोक भी नहीं सकते. यू कैन नॉट स्टॉप विद योर लेग्स आल्सो एंड योर ब्रदर्स विल कम इन फ्रंट. आप चिल्ला रहे हो कि ब्रेक नहीं है भैया. So what he will do, he will come in front of you and he will try to stop it. तो वो जैसे ही रोकने की कोशिश करेंगे आपके भैया, it will be not get stopped, right? Since the acceleration is taking place, there is change in speed is taking place, but in the increasing order. लेकिन आप फोर्स अपोजिट में जैसे आ रहा है, आप अपोजिट में रोकने की कोशिश करोगे, फिर थोड़े दूर तक वो जाएगा. So this force decreasing, it is because of what? Opposite force you are putting. ये आगे से हो गया. ठीक है. नाउ लेट मी टेल यू, अभी यहां पे किसके बारे में बात चल रहा है? ब्रेक के बारे में बात चल रहा है. इफ यू सी दैट, सी हियर, a constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed. मतलब कोई आपका मास है कोई, say for example it's a sphere, it's a 20 kg mass, so it is moving with the speed कितना? 15 meter per second. And to stop this you are applying opposite force कितना? F is equals to 50 Newton. Okay, so opposite force you are applying to stop this. मतलब क्या? Negative force apply कर रहे हो. क्योंकि for every action there is equal and opposite reaction. If you're putting that, you can bring this object to the rest. तो इसको रेस्ट को लाने के लिए आपने कितना फोर्स अप्लाई किया? अपोजिट में 50 न्यूटन. आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द बाइसिकल एग्जांपल, सेम थिंग. तो 20 केजी का आपका भाई भी है, बाइसिकल भी है, दोनों का मास कितना है? 20 केजी है मान के चलो, and it is moving with the 15 meter per second and you are trying to stop that bicycle, sliding bicycle over the क्या बोलते हो आप, slope road.
50 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो एंड फाइनली इट विल गेट स्टॉप। तो आपने यहां से लेके इस बाइसिकल को आपने यहाँ पे अप्लाई किया फोर्स, यू आर अप्लाइंग फोर्स हियर एंड इट विल गेट स्टॉप समवेयर हियर। ठीक है, तो स्टॉप होने के लिए कहां से लेके कहां तक, क्योंकि फोर्स आपने यहां पे अप्लाई किया था, एंड फ्रॉम हियर टू हियर what time it has taken to get stop after application of negative force, retarding force। क्या ये बात क्लियरली समझ में आई बच्चों? इज दिस क्लियर नाउ? बसवराज बल्लद, परिजन, या you can raise your hands, that's it, yeah, fine, thank you, if everyone is getting, it is interesting। मेरा पर्पस है सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, because I don't teach only single person, I teach all। yeah, thank you for your response। okay, अपना फंडा क्लियर रहता है, सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए बस। और वो भी सही तरीके से, ऐसे पपलू तपलू की तरह नहीं। ठीक है, नाउ चलो सॉल्व करते हैं लाइक अ मास्टर। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक अ मास्टर माय डियर किड्स। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला फंडा क्या है? व्हाट दे हैव गिवन, सी हियर, you need to mark out some things। initial with a speed, initial with a speed मतलब ये जो v है ना, देखो इनिशियल स्पीड जैसे कहते हैं ना, से फॉर एग्जांपल आप रन कर रहे हो, यू आर रनिंग, ओके, आपका 20 kg मास है, fine, your mass is 20 kg my dear kids, and you are running with a speed, how much speed? 15 meter per second, okay, at this position your speed is 15 meter per second। when you reach at this distance, this is called final point and this is called initial point। ये initial point है आपका and this is final point। so here the speed will be 0 but here the speed was 15 meter per second। तो क्या सर दोनों v है? तो दोनों v means it will get confused। so that's why what we are going to make this as, we are going to make it as u, small u, and this as v। so u माने initial speed, क्योंकि initial point पे है। the speed which is referring at the initial point is called as initial speed। ठीक है, the speed which is referring at the final point is called as final speed। तो उसको v से represent करते हैं। so you should remember this convention। convention मतलब क्या होता है बच्चों? it is called as culture, it is called as discipline into the physics। are you getting my point my dear kids? क्या ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है? दोनों जगह सेम वी नहीं ले सकते। से फॉर एग्जांपल द पार्टिसिपेंट्स आर 79 नाउ, ओके, सो सबका नाम समझो सचिन है, बॉयज का गर्ल्स का। सो व्हेन आई एम कॉलिंग सचिन, 79 मेंबर सभी लोग हाथ उठाओगे। it will be difficult not to recognize all peoples, right? so to recognize each and everyone, each and every individual is carrying their own name। are you getting my point my dear kids? ये बहुत ही simple है। so everyone is carrying their own individual names। so that is why यहाँ पे भी physics में भी to specify the physical quantities we are using specific names, specific symbols, specific units, okay, इसीलिए SI units को बनाया गया है। ठीक है, तो SI यूनिट्स को क्या कहते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, जिसमें आपको फिजिकल क्वांटिटीज देखने मिलते हैं। यू पीपल सी फिजिकल क्वांटिटीज, वैरायटी फिजिकल क्वांटिटीज, वैरायटी SI यूनिट्स, वैरायटी सिंबल्स। ओके ओके, सो चलो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप वाज टू रीड द न्यूमेरिकल प्रॉपरली, जिससे क्या करते हो आप? नोट डाउन कर लेते हो। क्या कर लेते हो? नोट डाउन फिजिकल क्वांटिटीज। यहां पे नोट डाउन किए थे कितने? 1 to 4। सो आफ्टर दैट सेकंड स्टेप क्या था? बाइफर्केशन। बाइफर्केशन कोई बुक में दिया नहीं रहता है। I have made my own technique, I have developed my own technique to solve the numericals very easily। तो मेरा पर्पस क्या है? to solve the numericals easily and not, I'm not simply क्या कहते हैं उसको, बहुत uplift नहीं कर रहा हूं। if you see, if you go through Google, if you go through YouTube,
You cannot see this technique anywhere in the world. I have developed on my own. अननोन और नोन को कॉलम बनाया जाता है, ठीक है। तो जीरो लेवल से कैसे उठना है, इसके लिए मैंने ये वाला टेक्निक रेडी किया है। ओके, सो लिसन अप। तो पहला स्टेप क्वांटिटीज लिखना प्रॉब्लम पढ़ के, फिर दूसरा स्टेप बाइफरगेट करना। द थर्ड स्टेप इज टू राइट द फॉर्मूला। माय डियर किड्स, क्या लिखोगे आप लोग? यू आर राइटिंग आउट द फॉर्मूला, मींस व्हिच फॉर्मूला वी आर यूजिंग टू सॉल्व दिस, व्हाट, टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन नहीं है। वी हैव दिस फॉर्मूला। कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है बताओ, फ्रॉम द हाई स्कूल डेज या फिजिकल्स टू एमए? जस्ट रेज योर हैंड्स, आई विल कम टू नो दैट। ओके, वेरी नाइस, मैक्सिमम पीपल्स, फाइन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड माय डियर किड्स, वेरी नाइस यार, 25 मेंबर्स, ओके यार, ओके, नो इश्यूज, ओके, वेरी नाइस, फाइन। ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಂತಾರೆ. ಫೈನ್ फाइन माय डियर किड्स, विल मूव फर्दर. तो अभी यहाँ पे क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन हम लोगों को फाइंड करना है. a is equals to f by m. Can we write like this? ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದಾ? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, a ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ on the left hand side. So we are going to write like this: a is equals to f by m. Fine. Okay, very nice, very nice. Everyone is participating and saying that yes sir, we know this. That is good, very good. Okay, shall we proceed my dear kids? Okay, listen up. Now a is equals to f by m. So sir, what is the need of acceleration? Why we are finding out this acceleration sir? Now आपका दिमाग में हो सकता है कि सर हम लोग एक्सेलरेशन क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों, वी नीड टू फाइंड आउट द टाइम फैक्टर. ओके, सो टू फाइंड आउट दिस अगेन वी हैव डिफरेंट फॉर्मूला. चलो इस फॉर्मूला को मार्क आउट कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है. सो वी विल प्रोसीड. काइनेमेटिक फर्स्ट इक्वेशन. डू यू ऑल नो दिस फॉर्मूला माय डियर किड्स? क्या ये आप लोगों को पता है? डू यू नो दिस फॉर्मूला माय डियर किड्स? क्या हाई स्कूल डेज में आपने ये फॉर्मूला देखा था? v is equal to u plus at. Even if you not seen this thing, but I have discussed in the last classes. ये वाला formulas motion in a straight line में आते हैं. Okay, I have discussed in the last classes, and those who have not sat my classes properly, उन लोगों को पता नहीं होगा. Regular classes में जो back मैंने या इसके बाद और दो formulas मैंने discuss किए थे. To find out the distance, s is equals to ut plus half at square. Okay, and v square is equals to u square plus 2as. So these are three kinematic equations which is used in the motion in a straight line. Are you getting my point my dear kids? This is very much simple. ठीक है, तो listen up my dear kids, we are not going to use these two things. Okay, हमको ये नहीं चाहिए सर, ये दोनों नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों में से आपने यही फर्स्ट वाले को ही क्यों चुना? Listen up my dear kids. So we have initial speed, right? Initial speed कितना है? That is u. This one 15 meter per second. देखो यहाँ पे क्या बोला है? Initially with a speed. Initially with a speed. Okay. They have raised up this formula here. क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना, मूविंग इनिशियली विद द स्पीड, मतलब इनिशियल स्पीड है कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड. मतलब हम स्मॉल v नहीं लेने वाले हैं. बट हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप? देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है. They are saying that this body will be definitely going to stop. So it means that v is equals to कितना आएगा यहाँ पे? 0 आएगा. क्या मैं बात सही बोल रहा हूँ बच्चों? Yeah. So the body will be going to get stop. It means that final velocity will be 0. इतना तो पता चल गया हमको रीड करने के बाद. Yeah. Very simple. ठीक है, तो चलो we will proceed. आगे बढ़ते हैं हम लोग. Okay. So first of all we need to find out the time. तो टाइम फाइंड करने के लिए u को मैं इधर भेज देता हूँ. v minus u is equals to at. Now v minus u divided by a is equals to t. मतलब हमको t फाइंड करना था, हमें मिल जाएगा.
if we put the value of v, u and a. तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. Small t is equals to what is v? V is 0. What is u? 15 minus 15. ठीक है, divided by acceleration. सर acceleration पे फंस गए हम लोग. ओके, क्योंकि acceleration तो नहीं आ रहा है सर. एक्सेलरेशन पे क्या करते हैं बच्चों? ये वाला फॉर्मूला a is equals to f by m. तो फोर्स कितना है बच्चों? इट इज 50. ओके, मास कितना था? 20. सो 0 0 गेट कैंसल्ड. सो 5/2 कितना हो गया? इट इज 2.5. 2.5 क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो देखो स्मॉल t इज इक्वल्स टू -15. ठीक है, -15 डिवाइडेड बाय फोर्स कितना था? क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है. माय डियर किड्स लिसन अप, रिटार्डिंग फोर्स मींस बेसिकली इट शुड बी माइनस, क्योंकि आप किसी व्हीकल को रोक रहे हो. बिकॉज अगर ये पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है व्हीकल एंड यू आर अप्लाइंग फोर्स अपोजिट टू दिस, क्योंकि दिस इज सी हियर, if the vehicle or if the body is moving in this direction, it is moving in the plus x direction, and when you are applying force, you are applying force in the negative direction. And whenever you are showing the motion inside physics, try to understand my point my dear kids. जब भी आप कभी भी मोशन दिखाते हो, you should show from left hand side to right hand side. Are you getting my point my dear kids? जब भी आप मोशन को दिखाते हो, कैसे दिखाना होगा? लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है. सो यू आर शोइंग लाइक दिस. तो इसके अपोजिट में जब आप फोर्स डालोगे वो तो अपोजिट ही रहेगा. अगर ये पॉजिटिव है तो ब्लैक वाला जो ये मैंने डाला हुआ है हैंड ग्लोव्स, तो ये नेगेटिव होगा. तो फोर्स आप उल्टा डाल रहे हो. सो इट शुड बी व्हाट? ये क्या रहेगा? माइनस आएगा. सो -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे ए क्या रहेगा? एक्सेलरेशन माइनस रहेगा 2.5. सर क्योंकि बच्चों टाइम विल नॉट बी नेगेटिव. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. अगर आपका टाइम नेगेटिव आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत हो, क्योंकि टाइम क्या आता है बच्चों? टाइम विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. सो माइनस एंड माइनस गेट कैंसल्ड. 2.5 जा 2.5 जा एंड 2.5 6 जा. सो t इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बच्चों? इट इज 6 सेकेंड. क्या आपने सॉल्व कर लिया ये चीज? इज दिस क्लियर? कितने बच्चों को समझ में आया? बताओ, फट से बताओ. थोड़ा सा इसको मैं प्रॉपरली सॉल्व कर लेता हूं. ठीक है, क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? चलो, तो इसको मैं ढंग से यहां पे लिखता हूं. ठीक है, मेरे को आपको कंसेप्ट समझाना था कि कन्वेंशन क्या होता है. कन्वेंशन विल बी ऑलवेज टेकन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड बच्चों. ओके, सिंस वी नो दैट, यहाँ पे इसको रब कर लेते हैं, इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं बच्चों. ओके, फोर्स क्या है आपका? -50 है और मास क्या है? 20 है. ये 0 0 कैंसिल कर दिया. -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन. एंड t इज इक्वल्स टू -15 डिवाइडेड बाय -2.5. सो दिस माइनस एंड दिस माइनस गेट कैंसल्ड. ठीक है, सो ये 1 जा आता है, ये 6 जा आता है. So this is t is equals to 6 second. So this is right one. Is this clear? चलो, बहुत ही क्लियर हो गया. मुझे लगता है आप सभी लोगों को ये समझ में आया. I feel that. Once more you solve, sir. Understood but not perfectly. चलो, जो लोगों को अंडरस्टैंड नहीं हुआ, tell your problem my dear kids. मतलब क्या दिक्कत क्या है, क्यों नहीं समझ में आया? बस एक दो हैं, बाकी सब लोग इट्स क्लियर बोल रहे हैं. Only 2 members. It's easy, some people are saying. Okay, very nice. Tell me your problem. You can discuss it frankly. See here, पहला जो स्पीड होता है ना, पहला जो स्टेप होता है ना, it will be always felt like difficult. लेकिन जो नेक्स्ट जो स्टेप्स होता है ना, it will be very much easy. Yeah. Thank you, Sumit. Very good explanation, sir. Thank you. Okay, thanks. ವಿನೋದ್ ಮಂಗನವರ್, ಕನ್ನಡ ಯೂಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಕನ್ನಡ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಾಕ.
ಇದು ರಬ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕೇಳ್ರಿ. ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಬಹಳ ಚಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋ. ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ನಿಮಗ್ನು ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟು, ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಯು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಎಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, 25 kg ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ಲೆ, 15 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರ ಮೈನಸ್ 50 ನ್ಯೂಟನ್ ತಗೋಬೇಕಿದು. ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾರಂದ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕ ನಿಮಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರ ಅನ್ನೋನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ, ಹೌದಾ? ಈಗ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ. ಕೇಳ್ರಿ, ಸೊ ಯು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಎ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದ ಕೆಳಗಡೆ. ಇದ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಟಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಅಂದ್ರ 0 ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯು ಅಂದ್ರ 15 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಮು, ಅನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಒಗದ್ ಬಿಡುಮು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀವಿ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಸ್ ಕಳಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಮಾಸ್ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಇರ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮೈನಸ್ 50 ಇದೆ, ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 20 ಇದೆ. ಸೊ 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಮೈನಸ್ 2.5, ಹೌದಾ? ಬಂತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಗ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಮೈನಸ್ 2.5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ನೋನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರ ಟೈಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0 ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೀತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು, ಮೈನಸ್ 2.5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ 2.5 1 ಜಾ 2.5 6 ಜಾ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗ, 6 ಬಂತು. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಉಳಿತಷ್ಟು ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಳಿತು. ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ, 6 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ t is equals to ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, 6 second. Is that clear, my dear kids? Any confusion over this? Okay, the next question I'm going to give you, I will tell the formula also. I'll give extra 1 minute of time to you peoples to solve this question. So first of all, you just take down this question, my dear kids. आपको लेना होगा, ये book में लिख लेना होगा, so that you can bifurcate the known and unknown quantities properly. A constant force acting, a constant force acting on a body, Abhijita, will you close the video? I request everyone, please close the videos, my dear kids. आपका जो वीडियो पैनल होता है ना, उसको आप क्लोज कर दो, or else simply get distracted. Please, it's a request. Thank you. Arun B. Chavan, will you close the video? Body of mass 3 kg changes its speed from 2 meter per second.
to 3.5 meter per second in 25 seconds. From the girls side, Vaishnavi Mutt, please take the screenshots of all the attendance. And from the boys side, as well as from the girls side, Parijain and this girl Vaishnavi Mutt, I think. From the boys side, Samir Kulkarni, as well as I think Samir Kulkarni, or else Rajput. What's your name? I don't remember your name. Rajput and Mohammad Uzaif. आप तीनों में से कोई स्क्रीनशॉट, ओके, नो इश्यू, कोई भी ले लो आप, मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, प्लीज डू दैट. टेक द अटेंडेंस ऑफ दैट एंड यू जस्ट सेंड दैट. थैंक यू. So that we should know that how many students were present into my class. The direction of the motion, the direction of the motion of the motion of the body remains unchanged. Unchanged. What is the magnitude and direction of the force? What is the magnitude and direction of the force? Of the force. Okay, my dear kids. So this is the problem. एक बार आप प्रॉब्लम पढ़ लो, एक्चुअली क्या है देख लो. सी हियर, वन थिंग यू शुड रिमेंबर इनटू योर ब्रेन माय डियर किड्स. यहाँ पे कहीं पे भी दे आर नॉट सेइंग रिटार्डिंग फोर्स, कांस्टेंट फोर्स बोल रहे हैं. इट मींस दैट इट इज नॉट अ नेगेटिव फोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड दिस, राइट? ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स? यस. ओके, सो बाइफर्केशन जब भी आप करोगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. क्वेश्चन को आपको पढ़ना जरूरी है. जब तक आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ोगे, यू कैन नॉट बाइफरकेट द क्वांटिटीज प्रॉपरली, एज वेल एज द थिंग व्हाट इज हिडन इनसाइड. अ कांस्टेंट फोर्स acting on a body of mass 3 kg changes its speed from 2 to 3.5 meter per second in 25 seconds. देखो बच्चों, they are saying that कोई स्पीड था वो 2 मीटर पर सेकेंड था, and then it is reached up to 3.5 मीटर पर सेकेंड. मतलब इंक्रीज हो रहा है. तो मतलब फोर्स क्या है? फोर्स इज पॉजिटिव, फोर्स इज नॉट नेगेटिव. ओके, दिस इज कॉल्ड एज फोर्स. फाइन. एक्सेलरेटिव फोर्स, नॉट रिटार्डिंग फोर्स. तो द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड. लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है. द डायरेक्शन इज नॉट गेटिंग चेंज्ड. ओके, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? तो वो लोग क्या पूछ रहे हैं? दे आर आस्किंग what is the magnitude and what is the direction of force. Fine my dear kids. तो आप लोग क्या करते हो? अननोन एंड नोन क्वांटिटीज को बाइफरकेट करते हो. चलो यहाँ पे मास को दे दिया है तो रेड कलर ले लेते हैं ताकि हमको बाइफरकेशन इजी हो जाए. सो मास इज इक्वल्स टू नोन क्वांटिटी, क्या करोगे? 3 kg लिखोगे. सही है ना? एंड दे आर सेइंग दैट इनिशियली स्पीड कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड. मतलब इनिशियल स्पीड क्या लिखोगे? 2 मीटर पर सेकेंड. तो फाइनल कितना हुआ? 3.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो v इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर पर सेकेंड. सो यहां तक क्लियरली समझ में आया बच्चों? एनी कंफ्यूजन ओवर दिस? डू यू पीपल गॉट दिस पॉइंट वेरी करेक्टली? या लिसन अप. तो इनिशियली क्या था? 2 मीटर पर सेकंड था ना. तो जैसे ही फोर्स कांस्टेंटली अप्लाई करा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी बनी? 3.5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, ये दोनों चीजों को नोट करो बच्चों प्रॉपरली. ठीक है, एंड द टाइम दे हैव गिवन ऑलरेडी हियर t. तो अननोन क्वांटिटी तो बाद में रहता है ना, तो पहले देख लो नोन क्वांटिटीज क्या क्या है. t इज इक्वल्स टू 25 सेकंड्स. द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड.
मतलब यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अनचेंज्ड, तो उसके बारे में ज्यादा दिमाग मत खराब करो। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो फोर्स कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, वैल्यू विद द यूनिट, ठीक है, तो उसको क्या बोलता है मैग्नीट्यूड। एज आई सेड यू इन द लास्ट क्लास, मैंने आपको बोला था whenever they are talking about magnitude, तो magnitude मतलब क्या होता है बच्चों, so magnitude means say for example you are talking about velocity, velocity का 3.5 मीटर पर सेकंड दिया है, समझो 3.5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखो दिस इज द SI यूनिट, ये आपका SI यूनिट है, और ये क्या है, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये दोनों मिला के क्या बनता है मैग्नीट्यूड। तो यू नीड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स का हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जिसमें आपको वैल्यू मिलेगा न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज SI यूनिट। तो क्या मैं जो बोल रहा हूं आपको क्लियरली समझ में आया, एनी कंफ्यूजन, प्रोबेबली नो कंफ्यूजन राइट। तो ऐश्वर्या कुंभार बोल रही हैं A इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सर। तो चलो एक्सेलरेशन इस बच्ची ने ट्राई किया, देखेंगे एक्सेलरेशन क्यों चाहिए सर हमें, व्हाई वी नीड एक्सेलरेशन सर, व्हाई वी नीड एक्सेलरेशन सर, क्योंकि फोर्स आप जब फाइंड करते हो मास इनटू एक्सेलरेशन बोलते हो, बट हियर वी डोंट हैव फोर्स एज वेल एज एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे फोर्स हमें फाइंड करना है, लेकिन एक्सेलरेशन तो यहाँ पे चारों क्वांटिटीज में नहीं है। सो दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा, तो v तो दिया है ऑलरेडी, ओके, एंड u दे हैव गिवन, v इज इक्वल्स टू u प्लस a इनटू t, t दिया है, u दिया है, v दिया है। सो यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट, a क्यों फाइंड करना है, a फाइंड करोगे तो फोर्स मिलेगा। एम आई राइट माय डियर किड्स। देखो यहाँ पे v माइनस u, मतलब u को इधर शिफ्ट किया, डिवाइडेड बाय t किया, इज इक्वल्स टू a लिखा। तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए v कितना था 3.5 था, ओके, u कितना था 2 था, डिवाइडेड बाय t कितना था 25 था। देख लो बच्चों, एनी कंफ्यूजन ओवर दिस, कोई कंफ्यूजन है। सो a इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, हाउ मच 1.5 डिवाइडेड बाय 25, कितना आता है बताओ मुझे, फट से बताओ, तो कितना आ रहा है, फट से बताओ, कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से बताना, आंसर कितना आ रहा है। क्या मैं कहूं आंसर इज कमिंग 0.06, या यू पीपल्स हैव ट्राइड दैट इज गुड। सर मेरा 6 आया था सर, मैं गलत हो गया सर, क्या करूं सर, अभी मैं रो सर बैठ के। नो माय डियर किड्स, जो लोग ट्राई करते हैं ना वो गलत भी तो, इट्स अ ट्राई, यू शुड अंडरस्टैंड, ट्राई में गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। और जो लोगों ने ट्राई नहीं किया उनके बारे में सोचो आप, जो लोगों ने ट्राई किया एटलीस्ट दैट इज करेक्ट, नो, इवन इफ इट इज रॉन्ग, ओके, डोंट वरी अबाउट इफ यू आर रॉन्ग आफ्टर कैलकुलेशन, सर आवर्स केम 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ, सो अटेम्प्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो एक्सेलरेशन मिल गया हमें। सो कैन वी फाइंड फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है बच्चों, मास इज मास कितना था 3 है ना, तो चलो मास 3 है इनटू 0.06, कितना आ रहा है बच्चों बताओ, टेल मी हाउ मच इट इज कमिंग, 0.18, वेरी नाइस माय बच्चों, वेरी गुड। कितना आ रहा है, सभी लोग कर रहे हो, अरे जियो, वेरी गुड, एवरीवन इज डूइंग वेरी फाइन। 0.18 न्यूटन ऑफ फोर्स यू आर अप्लाइंग, ओके। तो आप कॉन्स्टेंटली किसी मास पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, 0.18 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिससे क्या हो रहा है, द डायरेक्शन रिमेन्स व्हाट माय डियर किड्स, रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब द डायरेक्शन हैज नॉट चेंज्ड, सिंपल, क्लियर है ना, इज दिस क्लियर माय डियर किड्स, एनी कंफ्यूजन ओवर दिस।
Okay, perfectly clear, sir. Okay, thank you. No doubt. Fine. Very nice. तो अगर सभी को समझ में आ रहा है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू. It's clear, no doubt. Okay, very nice. This is what I want from you peoples. Okay, shall we go to the third one? तीसरा वाला कर लेते हैं. तो तीसरा वाला थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, बहुत ही इजी है, लेकिन आप लोग कितने अच्छे तरीके से उसको करते हो, इट डिपेंड्स. ओके, सो आई विल रब दिस माय डियर किड्स. सो व्हाई दिस इज मैंडेटरी न्यूमेरिकल्स? बिकॉज यू नो, जब फिजिक्स का एप्लीकेशन आप लोग कहीं पे भी करते हो इन प्रैक्टिकल फील्ड ऑफ लाइफ, this application is important. So after getting application of the laws of the equations, you will have the numericals. Ideal situations create करते हो. So to make better life, okay, तो rocket को आपको ऊपर भेजना है, you need to calculate it out. Okay, that is important. Okay, direction of force is in the direction of motion, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही बोला है बच्चों. They have said that the direction of the body has been unchanged. तो जो फोर्स है, फोर्स और वेलोसिटी दोनों देख लो आप, दोनों का प्रोपोर्शन देखोगे, and they have said that in the question only they have discussed that the direction of the body is unchanged. So even after application of constant force, since you are applying the force in the direction of motion, कोई ऐसे भाग रहा है, उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओ, क्या उसका डायरेक्शन चेंज होगा बच्चों? इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स? नो. आप पुश करोगे, कोई बंदा ऐसे दौड़ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, मैं पीछे से पुश करूंगा, क्या वो मेरे तरफ आएगा या आपकी तरफ जाएगा? सो द डायरेक्शन विल बी अनचेंज्ड, नो. या दिस इज हाउ. ठीक है, चलो तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं बच्चों. द थर्ड वन, अ बॉडी, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg. ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास, या. ओके दीपा, विल डू वन थिंग. जैसे ही मेरा क्लास ओवर होगा, मैं क्वेश्चंस, एक दो तीन क्वेश्चंस ऐसे ही बना के दे दूंगा होमवर्क के लिए. ठीक है, तो वो उसको वीडियो के साथ मैं ग्रुप में उन क्वेश्चंस को शेयर करूंगा, सो टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस इजीली. ओके, फाइन. इज एक्टेड अपॉन, is acted upon by two perpendicular forces, 8 Newton, 8 Newton and 6 Newton. Give the magnitude, give the magnitude and direction. Weight, direction of the acceleration of the body, of the acceleration of the body. ठीक है, ओके. प्लीज क्लोज द वीडियोस माय डियर किड्स. आपका जो वीडियो है, प्लीज क्लोज इट. फोकस ऑन द सब्जेक्ट. विनायक तुरावले, प्लीज. यार बताने के बावजूद आप लोग, कुछ लोग क्लोज नहीं करते वीडियो, अजीब लगता है. ओके, सो क्या क्या चीज दिए गए हैं, बाइफरगेट कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल. बाइफरगेट इट. ओके, विल यू सेंड फॉर्मूला सर? नो इश्यू माय डियर किड्स. सो देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइफरगेट करना सीखो.
सो न्यूटन मींस आर वी टॉकिंग अबाउट फोर्स? क्या हम फोर्स के बारे में बोल रहे हैं बच्चों? आर वी टॉकिंग अबाउट फोर्स? यस। चलो, तो बच्चों वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल बाइफरगेट। तो हम लोग बाइफरगेट करते हैं, ठीक है? चलो, लिसन अप। आपका है, देखो, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, ठीक है, इज एक्टेड अपॉन द बाय व्हाट? टू परपेंडिकुलर फोर्सेस, 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, ठीक है? तो 8 न्यूटन दे हैव रिटन फर्स्ट, 8 न्यूटन दे हैव रिटन फर्स्ट, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा पता है बच्चों? यहाँ पे एक आपको मास लेना पड़ेगा जिसको आप कहोगे इट इज अ 5 kg मास, and you should show that 8 newton force is always acted in the direction of plus x, because आप अगर पहला वाला फोर्स लेते हो, ठीक है, so you are showing along the direction of plus x, and the force you are taking along the y direction, ठीक है? See here, this is 6 newton, take this as plus x and this as plus y, क्योंकि इसके साथ माइनस नहीं है, nowhere is minus. Try to understand my point. Yes. No, no, my dear kids. Because both are acting together on the single mass, perpendicularly. दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों? Perpendicularly. और जब दोनों फोर्स अप्लीकेट होगा, ये कहां पे जाएगा? Somewhere in the middle. क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? When you are pushing force from both of the direction, तो वो कहां पे जाएगा? Somewhere in the middle. ये अगर ऐसा, ये अगर ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, so somewhere it will be go in the middle. Okay, am I right? Yes. So यहां पे एंगल थीटा बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है. व्हाट थीटा इज शोइंग? थीटा इज शोइंग द रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्शन. डायरेक्शन बता रहा है कि ये डायरेक्शन क्यों बता रहा है? बिकॉज in specific direction you are showing the resultant vectors direction, and that will be along the point P. इसको point P बना के चलो और इसको resultant R कहो, ठीक है? And the points will be x y. तो यहाँ पे x और यहाँ पे y means यहाँ पे x, यहाँ पे y. You are showing the position vector of the resultant vector. क्या मैं बात जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है बच्चों? You are showing the position vector. Position vector मतलब position of the quantity in terms of vector, okay, of what? Of resultant force. ये रिटार्डिंग फोर्स नहीं है, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स. मतलब दो फोर्स एक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट मिलता है ना, दैट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट फोर्स. ओके, द फोर्स वन. फोर्स वन ये क्यों लिया सर आपने? फोर्स वन ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे तो पहले दिया गया 8 न्यूटन. माय डियर किड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ दो वेक्टर्स हैं, वी हैव टू वेक्टर्स. सो व्हेन यू आर अप्लाइंग द कन्वेंशन, व्हेन यू आर अप्लाइंग कन्वेंशन, ये वाला क्या है? ओरिजिन है. तो ओरिजिन के नजदीक में पहला वाला वेक्टर कौन सा है? अलोंग ओरिजिन. ओरिजिन पे आप जब वेक्टर लोगे तो पहला वाला कौन सा है? 6 न्यूटन है, तो इसको आप F1 करके लोगे. और जो 8 न्यूटन है इसको आप क्या लोगे? इट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसको F2 करके लोगे, 8 न्यूटन. क्या ये बात क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? ओके, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ F1 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ 6 ನ್ಯೂಟನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ y axis. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಮು? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಮೋಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೋಷನ್, ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ लेफ्ट हैंड साइड माइनस एक्स से प्लस एक्स की ओर. तो when we are moving towards the plus x, तो पहला वाला कौन सा मिलता है? We are getting this one 6 न्यूटन, so we are taking it as F1. और बाद वाला कौन सा मिलता है? 8 न्यूटन, so we are taking it as F2. Is this clear, my dear kids? Any confusion over this? So maths ಒಳಗ left hand side is equals to right hand side. So whatever we are showing the quantity, we are trying it from the left hand side and moving it towards the right hand side. ये बात समझ लो. That is why physics is called as an exact science. क्या मेरी बात clearly समझ में आई? If it is, so take F1 as 6 Newton.
F2 as 8 न्यूटन, ठीक है, एंड मास एज कितना 5 kg। तो आपको इतना तो पता चल गया। एंड व्हाट दे आर आस्किंग, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोला है। ओके, सो इवन इफ यू बाइफरगेट दिस, आप बाइफरगेट कर रहे हो तो कैसे करोगे, करोगे ऐसे, ठीक है। आपने बोला अननोन क्वांटिटी और ये नोन क्वांटिटी, F2 को 8 न्यूटन बोला, मास को 5 kg बोला, और एक्सेलरेशन क्या है, इट्स अ अननोन क्वांटिटी, ठीक है। सो रब दिस, इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड, फाइन। गर्ल्स एंड बॉयज, you peoples are listening very in a focus mode, very nice। तो चलो, F is equal to ma तो फाइंड करना है, वैसे एक्सेलरेशन नहीं है बच्चों। परिजन, you said that F is equal to ma, very good। आपको एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। क्या मिलेगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। लेकिन ये फोर्स क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे मिलेगा सर, हाउ वी फाइंड दिस रिजल्टेंट फोर्स सर, बाय फाइंडिंग आउट व्हाट, Fr। Fr, तो Fr क्या है सर, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स माय डियर किड्स। Fr इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, कर लो फाइंड, यू विल गेट दैट। फट से जल्दी से बताना है मुझे, फट से बताना है। कितना आ रहा है, सो Fr इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन सर, वेरी नाइस माय डियर किड्स, ठीक है। तो Fr तो 10 न्यूटन आ गया, वेरी गुड, फाइन, दिस इज सिंपल, ठीक है। सुमित नॉट 50, इट इज 10 न्यूटन। देखो बच्चों क्या होता है, F1 स्क्वायर 8 स्क्वायर 64 और ये 6 स्क्वायर 36, दोनों मिला के कितना हुआ, 36 प्लस 64 100 हुआ, रूट ऑफ 100 कितना हुआ, 10 न्यूटन हुआ ना। चलो, Fr you found that, and to find out the direction क्या आता है पता है आपको, tan theta, tan theta is equals to it is F1 by F2, tan theta is equals to F1 by F2, opposite by hypotenuse। चलो ठीक है, why F1 by F2 सर, क्योंकि opposite by hypotenuse, इज दैट क्लियर, क्योंकि अपोजिट में क्या है 6 न्यूटन है, फिर ना नॉट हाइपोटेनस, सॉरी 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 सॉरी, ये आपका एडजेसेंट रहेगा। अरे अपोजिट बाय हाइपोटेनस तो साइन थीटा है बच्चों, इट्स एडजेसेंट। चलो, क्योंकि एडजेसेंट क्या है 8 न्यूटन है सर, अपोजिट क्या है 6 न्यूटन है सर, या अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो F1 को F1 by F2 कैसे करोगे, tan इनवर्स ऑफ F1 by F2 कितना 6 by 8, तो कितना आएगा सर 6 by 8 का देखो प्रोपोर्शन कितना बनता है, टेल मी आउट, फट से बताना जल्दी से, डम्बो लोग यूज साइंटिफिक कैलसी, फट से जल्दी से, 6 by 8, यहाँ पे कितना आता है, tan इनवर्स ऑफ 0.75 आता है, ठीक है, कितना आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ 0.75। अभी आपके पास अगर साइंटिफिक कैलसी है, if you people have scientific calci, I will tell you that how you are going to make that। Is it visible my dear kids, देखो यहाँ पे tan इनवर्स आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो आप tan इनवर्स, यहाँ पे देख सकते हो tan इनवर्स, ठीक है। सो tan इनवर्स ऑफ कितना 0.75, ठीक हो, देख लो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ कितना आ रहा है 0.75,
36, 36.869, 36.869। तो 69 किसके नजदीक है? 70 के नजदीक है। क्या मैं 70 लिखने के बजाय 7 लिखूं by making round off of that figure? 87 लिखूं? Is that clear? 36.87 degree. So this is the direction. Direction of what? Direction of the resultant force, my dear kids. क्या ये बात मेरी clearly आपको समझ में आ रही है? Any confusion over this? Yeah. So आपने डायरेक्शन फाइंड कर लिया। तो अभी रिजल्टेंट फोर्स कितना था? 10 था ना। सो पुट द 10 हियर, एफआर के बजाय 10 लिखो और मास कितना लिखो? 5 लिखो। एंड ए एज इट इज 5 1 जा 5 2 जा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आया बच्चों? टेल मी। इट्स एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। ठीक है, सिंपल था ना? वेरी मच इजी, इज इट? ಯಾ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ। क्या सबको समझ में आया? सर इंटरेस्टिंग, ओके, थैंक यू दीपा। यस सर, अंडरस्टूड सुमित, ओके, वेरी नाइस। यस यस सर, अंडरस्टूड परिजन, थैंक यू। ओके, अश्विनी राठौड़, दिव्या पवार, वैष्णवी मठ, प्रतीक्षा मंडकरे, फाइन, प्रताप राजपूत, गॉट इट। ओके, अनीता सुरपुर, भीमन्ना चलवादी, ओके, नाइसली क्लियर, ओके फाइन। प्रकाश पी पुजारी, okay, thank you. Actually I have to close this class. Yeah, it is easy, but sir we not take sin cos sir, okay, no issue। sin cos कहाँ पे यूज करना है, tan कहाँ पे यूज करना है, मैं वो भी चीज बताऊंगा, don't worry about that। Actually we have to close this class at 11:15, it's 11:26, fine। So I will close this class, my dear kids। Thank you so much for cooperating, sitting patiently। Take care, bye bye my dear kids, bye। One thing, one thing, one thing, one